Hello, good morning dear students. So this is your mentor Rajesh Nagdive and we are discussing the course complex number. So far we have discussed Cartesian form of complex number. As I said earlier that there are three types of form of complex number. Cartesian form, see z equal to x plus iota y. So this is called as Cartesian form of complex number. Fine. So this is Cartesian form of complex number. Now we will discuss about the polar form of complex number. But discussing polar form of complex number, that doesn't mean that now we have to left behind this Cartesian form of complex number. In fact, what happens actually with the help of this Cartesian form of complex number, we have seen the algebra of addition of complex number, subtraction of complex number, multiplication of complex number, division of complex number, how to find out the additive inverse and additive identity, multiplicative inverse and multiplicative identities. All these operations we have seen with the help of this Cartesian form of complex number, which we call as a standard form of complex number, right? Even we have find out the square of this complex number. This complex number we have squared there. We can also find out the cube third power, that is cube of this complex number. But after that, when we have to find out the higher power of the complex numbers, so it looks difficult, in fact almost impossible. Suppose we want to find out the 100 power of this complex number. So how to find out that? Okay. Definitely we have to multiply the complex number 100 times. But how to find out the simplification way of this complex number? So because of that, now we need to modify the standard form of complex number. Because of that, we have the another form of complex number. Because complex algebra is very new to us, okay, we have learned all the mathematics so far in the real number system, but in complex number system we have to go through all the algebra like the addition, subtraction, multiplication, division and squaring, cubing and higher powers. So because of that we have to modify this, and we now come to the polar form of complex number. Now the polar form of complex number we can draw with the help of this only, that is with the help of Cartesian form. In Cartesian form what happens, ये हुआ था, this is z, x comma y, okay, so this distance is x, this distance is y, this distance is r, and this is theta, measured in anti-clockwise direction. So r is given by square root of x square plus y square, which is called as the modulus of z, and theta is given by tan inverse of y by x, which is called as the argument of z. And this argument of z is principal value, mind it, principal value of z. Okay, fine. So from here we have also x equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. So z equal to what? X plus iota y. So x is r cos theta plus I into r sin theta. Take r common. So this becomes cos theta plus I sin theta. Right? This is z. So now we have written z in terms of r and theta, which is called as polar form of complex number z. This is called as the polar form of complex number z. Correct? So z equal to r into cos theta plus I sin theta. Here important point, r is called as the modulus of z, which is given by square root of x square plus y square, and theta is given by, यहाँ पे theta
को क्या बोलेंगे वो इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल वैल्यू लिखो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ सेट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, because we have drawn this polar form of complex number on the basis of this figure where the complex number actually lies in the first quadrant, and because of the first quadrant this theta is argument of z as well as principal value of argument of z. Got the point? But what happens when the complex number z lies in the second, third and fourth quadrant? So in second quadrant, how to find out the argument of z, and as the argument of z is equal to the principal value of z, but that theta which you have considered in this triangle, this theta is actually the geometrical angle, and we have find out this theta on the basis of this triangle, okay, which is in fact the acute angle, and this theta is argument of z measured anti-clockwise direction, and of course this is principal value of z lying between minus 180 degree to 180 degree. Fine, but as soon as this complex number lies in the second quadrant and third quadrant and fourth quadrant, this theta which we have measured in this triangle only will not be the argument of z, and of course the principal value of argument of z. So that is the different way to find out the argument of z and the principal value of z when the complex number lies in second, third and fourth quadrant. So that is the important points while writing the complex number in polar form. तो जब भी हम polar form में complex number को लिखने की कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा, the r is okay, there is no problem with the calculation of the r whether the complex number is lying in the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, but the important point is to find out the principal value of argument of z, and argument of z we can find out in each second, third and fourth quadrant in a different way, not like that this angle theta, ये एंगल तो वहाँ पे भी मेजर करना पड़ेगा, और वो एंगल एक्चुअली में आर्गूमेंट ऑफ जेड नहीं होता है। जब हम आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, करेक्ट है कि नहीं, और फिर प्रिंसिपल वैल्यूज को भी चेकआउट करते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू आपकी माइनस 180 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग 180 डिग्री। बट जब आप आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालते हैं, इट इज़ अ मेनी वैल्यूड फंक्शन, इट कैन टेक्स एनी वैल्यू फ्रॉम माइनस नेगेटिव टू प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो आप आर्गूमेंट निकालते ही समझ में आ जाता है कि वो माइनस 180 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है कि नहीं है, और फिर इसीलिए हम प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो जो आपको चेकआउट करना है वो ये करना है कि थीटा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड होगा, ठीक है, फाइन। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। प्लीज नोट इट, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर इसको नोट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो अब जो पॉइंट मैंने इस पोलर फॉर्म में बताया वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो थीटा होना चाहिए वो प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए। अब देखिए, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इस पॉइंट्स को देखिए। व्हाट हैपेंस, दिस इज जेड, ठीक है, एंड दिस इज जेड बार, कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, एंड दिस कोऑर्डिनेट इज एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, बोथ आर सेम, करेक्ट है। So r can be find out by square root of x square plus y square. So for this z conjugate and z, r is same, correct. Now look at here, this is important. When we measure this angle as theta in anti-clockwise direction, so at that time this z can be written as r into cos theta plus I sin theta. Okay, this is the polar form of complex number. Now mind it, in polar form of complex number, I is with sin theta, not with the cos theta. This is important, correct है कि नहीं? क्या होता है, जल्दी जल्दी में ऐसे भी लिख देते sin theta, क्वेश्चन में आपको ये ट्विस्ट आएगा, ये ट्विस्ट आएगा, ये पोलर फॉर्म नहीं है। I के साथ में ऑलवेज sin थीटा होना चाहिए, करेक्ट है, यस। तो फिर इसको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, फाइन। अब
here theta is actually the argument of z and actually it is the principal value of z. In writing the complex number in polar form, make sure that the theta must be the principal value of argument of z. This is important. Now what happens? What is the argument of this complex number lies in the fourth quadrant. This is actually minus theta. This theta and minus theta both are having the same numerical value. Numerical value में कोई issue नहीं है. But this angle actually we are measuring in clockwise direction because of we have given the sign negative. Whenever the angle is measured in clockwise direction, this is negative angle. Correct? Fine. So this is minus theta and this is plus theta, and because of that, see, in fact this minus theta is the principal value of argument of z, but we will call as a argument of z. So whenever we have term like that argument of z, and if it is not mentioned, then we will consider this argument of z as a principal value of z. Got the point? क्या मैंने बोला है? अगर आपको मेंशन नहीं किया है तो आर्गूमेंट ऑफ z इज ऑलवेज कंसिडर एज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z अनलेस एंड अनटिल मेंशन नहीं है. अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट द आर्गूमेंट ऑफ z, दिस z like that. Okay, this will be 2 pi minus this angle. This angle when जब हम इस एंगल को बात करते हैं तो वो एक्यूट एंगल होता है और ट्राइंगल में आ जाते हैं. वी हैव कम टू द ट्राइंगल, दैट इज वी हैव कम टू द ज्योमेट्रिकल एंगल. ज्योमेट्रिकल एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव. नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही हम कंसीडर करते हैं. आप ट्राइंगल में जब आप बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. वो डिपेंड करता है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में आप उसको मेजर्ड करते हैं. लेकिन जब ज्योमेट्रिकल एंगल करते हैं, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कोई भी रेंज आ सकता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट ज्योमेट्रिकल एंगल जब बात करते हैं तो वो एक्चुअली में 0 और 360 डिग्री के बीच में लाई करता है, इंक्लूडिंग 0 एंड 360 डिग्री. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हिडन पॉइंट्स है जिसमें आपको केयर करना पड़ता है. तो जब आप इस थीटा की बात करते हैं तो ये थीटा ज्योमेट्रिक एंगल से आप निकालेंगे tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, कोई इशू नहीं है. तो ये जो 2 पाई माइनस थीटा होगा ना, ये एक्चुअली में आर्गूमेंट ऑफ z होगा. इसमें आर्गूमेंट ऑफ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये प्रिंसिपल वैल्यू तो नहीं होगी क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा ये एक्यूट एंगल है, ये 360 डिग्री है. 360 डिग्री से कोई भी एक्यूट एंगल को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा. करेक्ट है कि नहीं? तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है. तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको ये मालूम है कि इसमें माइनस थीटा ही प्रिंसिपल वैल्यू होगी, जो डेफिनेटली माइनस 180 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगी. करेक्ट है कि नहीं? हाँ. तो बिकॉज ऑफ दैट this is very important that if it is not mentioned anything, then the argument of z has to be considered as its principal value. Got the point? Yes. Fine. So dear students, therefore here z equal to written as cos not theta, z conjugate की बात कर रहा हूँ, not theta, in fact it is minus theta plus I sin of minus theta, because this minus theta is the argument of z and that is in fact the principal value. Got the point? Fine. So therefore z conjugate equal to cos of theta minus I sin theta. Why it is? कि अगर cos के एंगल में माइनस है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, और साइन के एंगल में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है. तो दिस इज z conjugate that is equal to r into cos theta minus I sin theta. So this is the polar form of this complex number. ओके, बट जब भी आप इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, डोंट से लाइक दैट दिस थीटा इज द आर्गूमेंट ऑफ जेड, बिकॉज इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म का जो एक्चुअल फॉर्म है वो ऐसा होना चाहिए कि आर तो ठीक है, दिस कॉस थीटा ठीक है, और यहाँ प्लस होना चाहिए और आई के साथ में साइन थीटा होना चाहिए, आई के साथ में साइन थीटा होना चाहिए. तो भाई यहाँ तो प्लस अभी है ही नहीं, तो पोलर फॉर्म कैसे बोलेंगे? अगर ये पोलर फॉर्म नहीं है तो फिर थीटा को हम आर्गूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z कैसे बोलेंगे? नहीं बोल सकते ना. हाँ, दैट इज द इम्पोर्टेंट. तो एक्चुअली में ये a है. अब ये एक्चुअली में इसका पोलर फॉर्म है. अब इसके पोलर फॉर्म के बेस पे
ये इसका मॉडुलस हो जाएगा, और ये जो माइनस थीटा है वो एक्चुअली में इसका आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। आर्गूमेंट ऑफ जेड मैंने बोल दिया, दैट मीन्स वी हैव टू टेक दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड। नाउ गॉट द पॉइंट। हाँ, तो इसीलिए जब भी पोलर फॉर्म में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको आर्गूमेंट तो निकालना है वैसे ही जैसे हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में काम किया था, और वैसे ही उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा। बिकॉज ऑफ दैट आई सेड in the polar form that this theta has to be the principal value of argument of z. कितना important है argument of z? So whenever the complex number lies in the second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, you have to take extra precautions for writing the argument of z, in fact the principal value of argument of z. तो वो पिछले लेक्चर में आपको आना पड़ेगा। ठीक, चलो इसको नोट कर लीजिए, और मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसको भी चेकआउट कर लिया है। फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स नाउ, और उस प्रॉब्लम में वी विल चेक आउट ऑल दोज प्रिकॉशंस व्हेन द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सो आई विल स्टार्ट विद द second quadrant problems. Okay, express z equal to second minus 1 plus iota in polar form. Fine. So therefore this is minus 1 and 1. Okay, so definitely it is in second quadrant. तो सेकेंड क्वाड्रेंट है तो फिगर लाइक दैट होगा. सो दिस विल बी आर्गुमेंट ऑफ जेड. दिस इज अवर अल्फा. दिस अल्फा इज on the basis of this triangle, which is in fact acute angle. Okay, and in fact it is a geometric angle, not the trigonometric angle. And this is trigonometric angle, argument of z. We have measured in anti-clockwise direction. This is minus 1 comma 1, so 1 and 1. So this alpha is in fact alpha. Alpha is simply angle of this right angle triangle. Okay, and that has to be the acute angle. No problem, because it is a right angle triangle. So alpha is tan inverse of y by x, that is tan inverse of 1. And y by x means we have to always consider y and x as positive. फिर से वही triangle का concept. So triangle is there, therefore y and x simply representing the sides of the triangle. Side has to be always positive. Got? So this is tan inverse of 1, that will be pi by 4. But this alpha, this is alpha only. We have to find out this argument of z. So argument of z is what? Pi minus alpha. That is pi minus pi by 4. That will be 3 pi by 4. Right? So 3 pi by 4. And this angle, as you can say that, this angle in fact lies between minus 180 degree to 180 degree. Correct? Less than 180 degree. Anti-clockwise is the positive. Sorry. So this is 3 pi by 4, and that is in fact the principal value. So therefore now z equal to r. R you can find out. R is square root of x square plus y square, that will be root 2. So therefore z equal to r into cos theta plus I sin theta. Right? R is what? Root 2 cos theta 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4 principal value. So this is in fact your polar form of this complex number. I hope that ये problem clear होगा. नोट कर लीजिए. सेकंड प्रॉब्लम में मैं मूव करता हूँ. ठीक है, फाइन. सेकंड क्वाड्रेंट हो गया. तो whenever you have to find out the argument of z and its principal value, it is better to make this figure. अगर आपने ये फिगर मेंटेन कर लिया है तो आपको फिर कंफ्यूज नहीं होगा, किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी. मैंने जो प्रिकॉशंस आपको बता दिए वो सारे प्रिकॉशंस को आप यहाँ पे फॉलो करके इसको चेकआउट कर सकते हैं. फाइन. तो ये तो हो गया बेटा. अभी इसी चीज़ को मैं सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाता हूँ. तो इसको माइनस आई कर देता हूँ. दिस इज माइनस 1 एंड माइनस 1 नाउ लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट इट इज़ बेटर टू मेक द फिगर फर्स्ट. राइट? So this is the complex number. This is minus 1 and minus 1. That will be the angle alpha, and this is our argument of z. Correct? That will be theta, but not the principal value. At this angle, you can say that this is more than 180 degrees. So therefore, this argument of z
will not be the principal value of argument of z. We have to find out the principal value of argument of z, and this can be find out in this direction, that will be given by minus pi plus alpha, correct? Because we are measuring this angle clockwise direction, right? And with the help of the geometry, this is simply pi minus alpha. This angle is pi minus alpha. Whenever geometry is there, एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव हम कंसिडर नहीं कर सकते, मतलब एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव देयर, करेक्ट है? वेदर वी आर मेजरिंग इन, मतलब डायरेक्शन मेजरमेंट का नहीं होता है, द एंगल सिंपली बिटवीन द टू लाइन्स, राइट? बट व्हेनेवर द trigonometry is there, we have to take the direction of angle, in which direction we are measuring the angle. If it is measuring anti-clockwise, the angle is positive. Measuring in clockwise direction, the angle is negative. Fine. तो अब क्या हो गया, यहाँ पर आपने जो ये प्रिंसिपल वैल्यू ये निकाला, ठीक है? tan इनवर्स 1, तो यहाँ पे भी वही आएगा, सेम चलेगा, ठीक? उसके बाद ये सेम है, कोई इशू नहीं है। तो अब आते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z माइनस पाई प्लस पाई बाई 4, सो दैट इज माइनस 3 पाई बाई 4, एंड देयरफॉर r तो ठीक है, r इज अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो देयरफॉर z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सो दिस इज रूट 2 cos of minus 3 pi by 4 plus I sin minus 3 pi by 4. Apply that concept कि cos के अंदर एंगल माइनस है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, this minus will come out, so sin of 3 pi by 4. So this is the polar form of complex number. Got the point? I hope that you people have understanding the concept of this principal value of argument of z and writing the complex number in polar form. In writing the complex number in polar form, we must have the theta, that is the principal value of argument of z. Now coming to the next questions and complicated questions. So students, now we will start with some more complicated problems. Okay, first one is z equal to 1 plus 2i and 1 minus 3i. We have to write this complex number in its polar form. See, whenever we have to write the complex number in polar form, we need the argument of z, that is the principal value of argument of z. So therefore, we should, first of all, we should know the quadrant where this complex number lies. But this complex number not in its standard form, not in its Cartesian form. So first of all, we will try to convert this complex number into its Cartesian form. So fine, this is 1 plus 2 iota, 1 minus 3 iota, 1 plus 3 iota, and 1 plus 3 iota. Fine, there is no problem with that. So this is 1 plus 1 into 1, 1. Plus 3 iota, this is plus 2 iota, 3 to the 6 minus 6, this is 1 plus 9, isn't it? 1 square is 1, 3 square is 9. So this is minus 5 plus 5 iota divided by 10. ठीक है, and therefore this is minus 1 by 2 plus iota 1 by 2. So in fact this is minus 1 by 2 and 1 by 2 ordered pair elements. So lies in second quadrant. Second quadrant complex number, right? तो second quadrant है, तो first of all you draw the figure so that you can find out the principal value of argument of z. So the complex number is this one. So this will be argument of z, and that will be the principal value as well, correct? But this can be find out by using this angle alpha. And this angle alpha can be find out. Alpha can be find out tan inverse of y by x, simply y by x. So 1 by 2 divided by 1 by 2, isn't it? So 1 by 2 divided by 1 by 2, tan inverse of 1, that is pi by 4, right? So this is alpha pi by 4, but this argument of z is pi minus alpha. So therefore principal value
of z that we represent by theta in the polar form of complex number, which we represent that theta in the polar form of complex number, which is in fact given by pi minus alpha. Pi minus alpha. Alpha is what? This is pi by 4. So this is 3 pi by 4. And therefore, you can find out the r cos theta plus I sin theta, which is the polar form. And r you can find out. R is square root of 1 by 4 plus 1 by 4. That is 2 by 4. That is square root of 1 by 2 by 4. Matlab square root of 1 by 2. That is 1 by root 2. Right? 1 by root 2 is fine, and cos of 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4. That will be the polar form of complex number. Please make the note of this problem. We will move forward to the next one. Okay, fine. So coming to the next one. Write down the second problem, students. Z equal to 1 plus 7 iota divided by 2 minus iota chi square. So first of all, we will try to write down this complex number in its standard form, isn't it? Then we will try to find out the principal value of argument of z. Fine. So here, this is 1 plus 7 iota, and this is 2 square matlab 4 minus 4 iota plus iota square matlab minus 1. Correct? So this will be 1 plus 7 iota, 4 minus 1 matlab 3 minus 4 iota. Got the point? Right. So therefore, this can be now here 1 plus 7 iota, 3 minus 4 iota into 3 plus 4 iota, 3 plus 4 iota. Right. So this is 1 into 3, 3 plus 4 iota, 7 3s are 21 iota, 7 4s are 28, minus 28. This is 9 plus 16. So find, this is 3 minus 28 minus 25 plus 25 iota divided by 25. So this is minus 1 plus iota, minus 1 plus iota. Correct? Which is the standard form of complex number. So that is minus 1 comma 1, that is second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस 1 कॉमा 1. अभी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, कोई इशू नहीं है, आपने आर देख लेना है. सो दिस इज आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, दैट इज रूट 2. करेक्ट? एंड दैट फिगर सेकेंड क्वाड्रेंट, this will be minus 1 comma 1 complex number, this will be alpha, and this is our principal value of argument of z. Argument of z भी वही होगा और principal value भी वही होगा, and this can be find out by minus pi alpha, and alpha is tan inverse of 1 by 1. अल्फा में माइनस 1 और 1 नहीं करते, ज्योमेट्रिक एंगल की बात है, कई बार बता चुका हूँ. सो दैट विल बी पाई बाई 4. सो देयरफॉर दिस थीटा जो हम प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करते हैं, थीटा जिसमें पोलर फॉर्म में लिखते हैं, वो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज 3 पाई बाई 4. एंड देयरफॉर z इक्वल टू आर. आर इज व्हाट? रूट 2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4. प्लीज नोट इट.
नोट कर लीजिए पॉज करके। अब आगे स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पे बेस रहेंगे। नाउ फर्स्ट एक्सप्रेस z इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इन इट्स पोलर फॉर्म। नाउ look at the question, z equal to 1 plus cos theta plus I sin theta। इस मतलब ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये पोलर फॉर्म में है, बट ये पोलर फॉर्म में नहीं है, बिकॉज पोलर फॉर्म z हैज टू बी लाइक दैट r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो क्या है, आई के साथ में साइन थीटा है लेकिन r पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये 1 प्लस कॉस थीटा है। 1 प्लस कॉस थीटा होने से r पता नहीं चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉट इन द पोलर फॉर्म। व्हाट द पॉइंट? यस। अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए जस्ट यू हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्री। दिस 1 प्लस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने इसका ट्रिग्नोमेट्रिक का आपको कॉन्सेप्ट बता चुका है पहले से, फॉर्मूले मालूम है, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और दिस साइन थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा बाई 2 into cos theta by 2. Now as you can see that 2 cos theta by 2 you can take common, so this is cos theta by 2 plus I sin theta by 2. So ये अब आपका r हो जाएगा और ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू या आर्गूमेंट ऑफ z। अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z के बारे में मैं बता चुका हूँ कि आर्गूमेंट ऑफ z को प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z ही कंसीडर करेंगे, अनलेस एंड अनटिल ये मेंशन नहीं किया है, करेक्ट, ठीक। तो देयरफॉर दिस r इक्वल टू आ गया 2 cos थीटा बाई 2 और थीटा आ गया आपका थीटा बाई 2, या इसी को आप बोलेंगे आर्गूमेंट ऑफ z, ठीक। और ये हो गया आपका r 2 cos थीटा बाई 2। और अब ये पोलर फॉर्म में आ गया, ये पोलर फॉर्म में आ गया, नोट करो इसको। अब देखिए ट्विस्ट कैसे आएगा, क्वेश्चंस में ट्विस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको मैंने ये लिख दिया z इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन, z इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, और इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। या फिर दूसरा क्वेश्चन हो सकता है फाइंड r या मॉडुलस ऑफ z, या फिर ऐसा लिख सकते हैं फाइंड आर्गूमेंट ऑफ z, ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ z मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z, ठीक है, फाइन। तो अब क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म सो दैट वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइंड आउट द आर्गूमेंट ऑफ z एंड ऑफ कोर्स द मॉडुलस ऑफ z। सो ट्रिग्नोमेट्री को यूज करिए, दिस 1 प्लस साइन थीटा एंड दिस इज आई कॉस थीटा। तो आई के साथ में क्या होना चाहिए, आई के साथ में साइन होना चाहिए। ये साइन कब होगा, तो देखो 1 प्लस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, और यहाँ पे कॉस को लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो मेरा फर्स्ट काम तो हो गया कि आई के साथ में साइन, ये लाने की कोशिश करो। अब ये देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल को हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, एंड दिस इज आई। अगेन यू विल यूज साइन 2 थीटा फार्मूला, सो दिस इज 2 साइन, एंगल को हाफ कर दो, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, फाइन। Now you can take 2 cos pi by 4 minus theta by 2 as common. So we will remain with cos pi by 4 minus theta by 2 plus iota. This is sin pi by 4 minus theta by 2. Now you can see this is in terms of r cos theta plus I sin theta. So this is our r, that is r equal to 2 into cos pi by 4 minus theta by 2, find
एंड आर्गूमेंट ऑफ जेड या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जेड पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 डियर स्टूडेंट्स. सो दिस इज इम्पोर्टेंट वन कि 1 प्लस साइन थीटा है प्लस आई कॉस थीटा है. आई के साथ में कॉस नहीं हो सकता, साइन थीटा. इसको पोलर फॉर्म में लाने के लिए आपको पहले तो कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा. कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा. आई के साथ में मुझे साइन लाना है तो इसके कारण से इसको मैंने पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया. तो इसको भी पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया. लेकिन अभी ये पोलर फॉर्म में भी नहीं है तो अब ट्रिग्नोमेट्री में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है. ये पूरा थीटा है, इसका आधा कर देंगे पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 एंड लाइक दैट वी विल गेट सिंप्लीफाइड. अब एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में आता हूँ, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए. इसी फॉर्म में ये प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैंने आपको पहले भी बोला है, इसमें कॉमन एरर होते हैं इसलिए. तो z इक्वल टू मैंने लिख दिया 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. अब इसको देखिए 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तो है लेकिन ये डिनोमिनेटर में. अब इसको कैसे चेकआउट करेंगे, ठीक है. क्या है, z इक्वल टू 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. ओके. अब पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पोलर फॉर्म में निकालना है या इसका मुझे आर्गूमेंट निकालना है, आर्गूमेंट ऑफ जेड या आर निकालना है या पोलर फॉर्म में लिखना है. पोलर फॉर्म में लिखते ही मैं इसका आर्गूमेंट भी निकाल लूंगा और आर भी निकालूंगा. आर्गूमेंट ऑफ जेड मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जेड निकालूंगा. ठीक है साहब. अब क्या तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं. या तो फिर आप इस डिनोमिनेटर को पहले आप रियल नंबर कन्वर्ट करो, मतलब इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो. तो उस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड पोलर फॉर्म में तो नहीं ला सकते. जैसे अभी वाले जो प्रॉब्लम्स मैंने 2 प्रॉब्लम्स किए थे ना, उस वाले फॉर्म में आ जाएंगे. करेक्ट है. हाँ, तो फिर से वापस आपको वो एंगल को चेंज करना पड़ेगा. तो अब ऐसे वाले सिचुएशन में आपको क्या करो कि सबसे पहले तो वो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट को लगा दो. 1 माइनस कॉस थीटा को 2 इस बार साइन स्क्वायर में आ जाएगा थीटा बाई 2 और इसको लिखो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2. ये काम कर दिया. ये काम करने से अब यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे तो साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2. अब इसको आप क्या करो, रियल नंबर बनाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो. तो ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा बाई 2 माइनस आई कॉस थीटा बाई 2. करेक्ट है. और फिर यहाँ ये तो अलग निकल गया 1/2 साइन थीटा बाई 2 और ये डायरेक्टली अब मैं लिख देता हूँ क्योंकि आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा से. तो फाइनली ये सिंपली 1 आ जाएगा. 1 आया नहीं आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 1 आ जाएगा. तो अब ये देखो ये क्या हो गया 1/2 साइन थीटा बाई 2. यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है लेकिन ये साइन थीटा बाई 2 है और ये माइनस आई कॉस थीटा बाई 2 है. अब ये आई के साथ में कॉस नहीं होना, आई के साथ में कॉस नहीं होना, आई के साथ में कौन होना साइन. तो उसको भी हमको लाने को तरीका मालूम है. साइन थीटा बाई 2 ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2. ये हो गया. ठीक है. देखो फाइन, ये यहां तक कि हम पहुंच गए. डियर स्टूडेंट्स आप इसको पोलर फॉर्म बोल सकते हैं. ये पूरा आपका आर हो जाएगा. अब मेरे को क्वेश्चन जो पूछना है वो देखना है. सबसे पहली बात आर बताइए क्या होगा. सो द आर इज 1/2 साइन थीटा बाई 2 या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कोसेक थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2. ये आर होगा. अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज आर्गूमेंट ऑफ जेड. आर्गूमेंट ऑफ जेड या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जेड. अगर ये पोलर फॉर्म में है तो जो आर्गूमेंट है वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जेड है. तो ठीक है, ये पोलर फॉर्म हो गए. अब इसके बारे में मुझे बताइए
इज इट पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू इज द आर्गूमेंट ऑफ जेड? ये माइनस है डियर स्टूडेंट, माइनस, बिकॉज ऑफ दिस माइनस यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू. व्हाट द पॉइंट, दैट इज थीटा बाई टू माइनस पाई बाई टू. ये आंसर है, प्लीज नोट इट. ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने आपको बता दिया है. तो ये छोटे छोटे प्लस और माइनस वाले पॉइंट, इसके कारण से ये प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए. एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और मैं डिस्कस करता हूँ. तो देखिए, फाइंड आर्गूमेंट ऑफ, ये क्वेश्चन आता है मेंस लेवल से लेके एमडीए एमएससीटी लेवल पे. फाइंड आर्गूमेंट ऑफ सेट इक्वल टू लिखा हुआ है साइन पाई बाई फाइव, साइन पाई बाई फाइव प्लस आई कॉस पाई बाई फाइव. फाइन, इस क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं. फिर से वही क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिया, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है. आई के साथ में कॉस तो नहीं हो सकता अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखना है. अब आपको आर्गूमेंट निकालना है, आर्गूमेंट निकालना है, इसका मतलब आपको इसको पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. पोलर फॉर्म में अगर लिख दिए तो जो आर्गूमेंट है वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू है. ये बात भी क्लियर हो गई. लेकिन पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आई के साथ में कॉस नहीं होना चाहिए, ये बात भी क्लियर हो गई. आई के साथ में हमेशा कौन होना चाहिए, साइन होना चाहिए. ठीक है साहब. तो पहले तो आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो. इसको मैं लिखता हूँ टू साइन, एंगल को हाफ करेंगे, पाई बाई 10 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 10 हो जाएगा, है ना, ये होगा. और ये कॉस पाई बाई 5, इसको क्या करेंगे, आई के साथ में कॉस है, तो अब यहां इश्यू आ गई. हाँ, एक्चुअली में क्वेश्चंस को मैंने रॉन्ग लिख दिया है. फाइंड आर्गूमेंट ऑफ 1 माइनस, यहाँ चेंज कर लो, 1 माइनस कॉस पाई बाई 5, ये है. ठीक है, चेंज कर लीजिए, 1 माइनस कॉस पाई बाई 5. ठीक. हाँ, अब इसको चेंज करते, इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज करेंगे तो प्लस आई, ये 1 माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का आधा, मतलब पाई बाई 10. अब आप यहां से देखेंगे 2 साइन पाई बाई 10, दोनों को मैंने कॉमन ले लेना है, तो कॉस पाई बाई 10 भी आ जाएगा और आई के साथ में साइन भी आ जाएगा पाई बाई 10. अब यहां से ये पता चल गया कि आर्गूमेंट ऑफ जेड एक्चुअली में पाई बाई 10 है. प्लीज नोट इट. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था यहाँ पे, जेड इक्वल टू, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है जेड इक्वल टू साइन पाई बाई 5 प्लस आई इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाई 5 था. तो इसको सिंप्लीफाई करते चला मैं पोलर फॉर्म में लाने के लिए, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड आ गया. ऑफकोर्स दी मॉडुलस ऑफ जेड 2 इंटू साइन पाई बाई 10 होगा. करेक्ट है. तो ये था डियर स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको चेकआउट करेंगे, आइलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है.